न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। ठीक एक सप्ताह पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा की थी। तब से उसके आसनसोल पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। आखिर यह इंतजार खत्म हो गया। आज रविवार की शाम को शत्रुघ्न सिन्हा अंडाल एयरपोर्ट पर विमान से पहुंचे। उनका यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए रानीगंज के तृणमूल विधायक तापस बनर्जी, श्री रामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी, इनके अलावा बड़ी संख्या में तृणमूल नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, जो उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा के आने को देखते हुए एयरपोर्ट पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आसनसोल पहुंचने पर तृणमूल के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने खुशी प्रकट की और कहा कि उम्मीद है कि उन्हें यहाँ के लोगों का प्यार मिलेगा। आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल रविवार को शिल्पांचल के प्रसिद्ध घाघरबुड़ी मंदिर अपने समर्थकों के साथ पूजा करने पहुंची। जब वे मंदिर पहुंची तो भाजपा समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ अग्निमित्रा पाल का स्वागत किया। मुख्य द्वार से वह पैदल ही पूजा सामग्री लेकर मंदिर गई और पूजा अर्चना किया। इस दौरान अग्निमित्रा पाल ने कहा कि जिस तरह 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने कहा था बांग्ला निजे में के चाय, उसी तरह मैं भी कह रही हूँ आसनसोल निजे में के चाय। यहाँ बाहरी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। 2014 से आसनसोल की जनता भाजपा के साथ है। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री मोदी पर काफ़ी विश्वास करते हैं, उनके साथ है। इस बार भी वे अपना विश्वास बनाए रखेंगे। आसनसोल के लोग अपनी बेटी को अवश्य जिताएंगे। आज वह अपने पिता और बेटी के साथ पूजा करने आई है। আমি সনাতনী হিন্দু বাড়ির মেয়ে, আমি সনাতনী হিন্দু, সুতরাং আগেবারও যা করেছিলাম, ছোটোবেলা থেকে যা শিখে এসেছি, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মা বাবাকে প্রণাম করে বেরোনো, ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে ভগবানকে প্রণাম করে বেরোনো। আজকে একটা বড় লড়াইয়ের ময়দানে লড়াই করতে নামছি। আমার সমস্ত নেতৃত্ব, আমার সমস্ত কার্যকর্তা ভাই বোনেরা আমার সঙ্গে রয়েছেন এবং আগেবারও যা করেছিলাম বিধানসভার আগে, আজকেও মা ঘাঘরবুড়ি মন্দিরে এসে তার আশীর্বাদ নিয়ে আজকে প্রচারে নামব। বিরোধী পক্ষ সম্পর্কে কি বলবেন? বিরোধী পক্ষ আমি শুনছিলাম একজন মানুষকে দেওয়া হয়েছে এখানে টিএমসি থেকে এবং আরেকজন মানুষ সিপিএম থেকে দাঁড়িয়েছেন, মিস্টার পার্থ মুখার্জি এবং মিস্টার শত্রুঘ্ন সিনহা। কিন্তু আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে কাজ করে চলেছেন 2014 সাল থেকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে নীতি আদর্শ, সেই আদর্শকেই আসানসোল মানুষ বিশ্বাস করে, ভরসা করে। তারা জানে যে আজকে একটা মানুষ আসে অন্য দল থেকে, সে যদি জিতেও যায় সে থাকবে না এখানে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন না বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, আজকে বলবো আসানসোলবাসী নিজের মেয়েকে চায়। তারা জানে যে আজকে যে দাঁড়িয়েছে অগ্নিমিত্রা, সে তাদের বাড়ির মেয়ে, সে সুখে দুঃখে তার পাশে দাঁড়াবে, হাজার চেষ্টা করবে তাদের জন্য কাজ করা, যেটা আমি লাস্ট 1 বছরে করার চেষ্টা করেছি। এই সরকার কাজ করতে দেয় না, চাল ডাল দিলেও অ্যাটাক করে, তিরপল দিতে গেছি সেখানেও
তৃণমূলের এক নেতৃত্ব আমাকে অ্যাটাক করেছিল, আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু তার মধ্যেও চেষ্টা করেছি মানুষের পাশে দাঁড়াতে। আজকে মিস্টার শত্রুঘ্ন সিনহা, তাকে সম্মান করি তার বলিউডের কন্ট্রিবিউশনের জন্য, কিন্তু রাজনীতিতে আসানসোল মানুষের কাছে তার এক চুল জায়গা দেব না। এক তো মানুষ তাকে বিশ্বাস করেন না, কারণ কি তিনি আজকে সেরকম ক্রেডিবল নয়, ট্রাস্টওয়ার্দি নয়। আজকে এত দল যিনি চেঞ্জ করেছেন, বিজেপি, কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টিতে ওনার ওয়াইফ দাঁড়িয়েছিল, সেখানে উনি প্রচার করতে গিয়েছিলেন, আজকে টিএমসি। এরপরেও যে উনি কোথায় যাবেন মানে নেভার নো, ওনার কোনো সেই স্থিরতা নেই আর কি। আর মানুষের সাথে, আসানসোলের মানুষের সাথে ওনার কী কানেকশন, কতটুকু চেনেন উনি আসানসোল মানুষকে, তাদের সুখ দুঃখ কি জানেন? একটা মানে কি বলবো, 10টা টিএমসি কার্যকর্তার কর্মীর নাম বলতে পারবেন, জায়গার নাম বলতে পারবেন? যে কি জানেনই না, কি সমস্যায় জানেন না, কাউকে চেনেনই না, তাকে প্যারাশুটের মতো বাইরে থেকে নামিয়ে দিলেন। আর বহিরাগত বলা, এটা তো আমরা শিখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। উনি আমাদের কাছে বহিরাগত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের শিখিয়েছেন বাংলার বাইরে থেকে যে আসবে তাকে অপমান করবে বহিরাগত বলে। আমরা অপমান করব না, আমরা তাকে স্বাগত জানাবো, কিন্তু রাজনীতির লড়াইয়ে তাকে এক চিনতে জায়গা দেওয়া যাবে। इस मौके पर विधायक लखन घरुई, डॉक्टर अजय पोद्दार, पार्षद चैताली तिवारी, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, आशा शर्मा, दिलीप दे आदि उपस्थित थे। মেয়েকেই চায়, আসানসোল স্থানীয় মানুষকে চায়। আসানসোল এমন একজনকে চায় যে দিল্লির সঙ্গে সহযোগিতা করে আসানসোলকে অনেক কিছু পাইয়ে দেবে, আসানসোলের যে বঞ্চনা তার প্রতিবাদ জানাবে, যে সেরকম লোককে চায়। তো ন্যাচারালি সেটা অগ্নিমিত্রা পল, এখানকার আসানসোলের মেয়ে, এখানে পড়াশোনা করেছেন, এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, এখানে রাজনীতি করছেন। অগ্নিমিত্র পলকে কিন্তু বলে দিতে হয়নি যে ঘাগরবাড়ি মন্দির কোথায়, উনি নিজে বলেছেন ঘাগরবাড়ি মন্দির যাব। শত্রুঘ্ন সিনহাজি এলে হয়তো ওনাকে কেউ গাইড করবে যে এখানে একটা ঘাগরবাড়ি মন্দির আছে, সেখানে যেতে হবে। ওনাকে হয়তো কেউ বুঝিয়ে দেবে যে কল্যাণেশ্বরী মন্দির আছে, যেতে হবে। কিন্তু অগ্নিমিত্রা পলকে বোঝাতে হবে না কোথায় কল্যাণেশ্বরী মন্দির, কোথায় ঘাগরবাড়ি মন্দির, কোথায় আপনার আমাদের ইস্কন মন্দির, কোনোটাই বোঝাতে হবে না। এবং শত্রুঘ্ন সিনহাজির আসানসোল চিনতে জানতেই 2 বছর লেগে যাবে। তো ন্যাচারালি আমরা এমন লোককে চাই যে আসানসোলকে চেনে, আসানসোলকে জানে, আসানসোলের আবেগকে মর্যাদা দেবে, এবং আসানসোলের যে চাহিদা, সে চাহিদাকে দিল্লির সামনে তুলে ধরবে, সেখান থেকে অর্থ নিয়ে আসবে, আসানসোলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিধানসভা ভিত্তিতে আপনারা 5টা বিধানসভায় হেরে গেছে, এবারে কি মানে পুরোনো যে ঐতিহ্য, যে এখানে তৃণমূল একবারও কিন্তু পাইনি, সেটাকে আপনার মানে আপনি বিধানসভা, এটা তো লোকসভা ভোট, তো লোকসভা ভোটে আমরা কি করেছিলাম সে ফলাফল নিয়ে আলোচনা করুন। লোকসভায় তো আমরা 2 লক্ষ ভোটে এগিয়ে আছি, লোকসভা ভোট আর বিধানসভা ভোট তো আলাদা। লোকসভায় তো এই লোকসভায় যদি অন্য কাউকে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে, সে গিয়ে কী করবে? দিল্লিতে লড়াই করবে, মোদিজির বিরোধিতা করবে। আমাদের তো এমন লোক চাই না, আমাদের এমন লোক চাই যে দিল্লিতে গিয়ে আসানসোলের জন্য অর্থ নিয়ে আসবে, এখানে অনেক ফান্ড আসবে, অনেক উন্নয়ন হবে। গাড়ুই নদীর জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, এখানে মাস্টার প্ল্যান আসানসোল, তার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন আছে। আমাদের তো এমন লোককে চাই যে সে অর্থগুলো আনতে পারবে। যে প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে গালাগালি করবে, সেরকম লোককে নিয়ে তো আসানসোল এগোবে না। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है।
आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। तृणमूल कांग्रेस किसी भी कीमत पर आसनसोल लोकसभा उपचुनाव जीतना चाहती है। इसके लिए जिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रविवार को एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित 91 पार्षद, सभी प्रखंड अध्यक्ष, तृणमूल कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी, जिलाध्यक्ष विधान उपाध्याय, विधायक हरेराम सिंह, शिवदासन दासू, नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी थे। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि सभी को जमकर 20 दिन मेहनत करना होगा। जिस तरह पार्षद चुनाव में हम लोग काफ़ी अंतर से जीते हैं, इस जीत को लोकसभा उपचुनाव में भी बरकरार रखना होगा। आज हमारे प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल आ रहे हैं, सोमवार को अपना नामांकन करेंगे। দেখুন, আজকে আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি বৈঠক ছিল। এখানে আমাদের এই জেলা থেকে নির্বাচিত 6 বিধায়কও ছিলেন। সমস্ত কাউন্সিলর যারা নির্বাচিত হয়েছে আসানসোলে 91 জন তারা ছিলেন, জেলা পরিষদের সদস্যরা ছিলেন, ব্লক প্রেসিডেন্ট সহ সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছিলেন। আজকের থেকে আমাদের নির্বাচনী লড়াই শুরু হলো। আগামীকাল আমাদের প্রার্থী তার মনোনয়ন জমা দেবেন এবং আজকেই তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন আসানসোলে। নির্বাচন হবে। দুবার লোকসভাতে কিন্তু আপনারা হেরেছেন, আবার লোকসভা ভোট আসছে, এবারে 100% জিতবো। যে ওয়ার্ডগুলোতে কাউন্সিলররা জিতেছিল সেই ওয়ার্ডগুলো কি মনে হচ্ছে কিছু হবে? যে ওয়ার্ডগুলো কাউন্সিলররা জয়লাভ করে 91 সিট, সেই ওয়ার্ডগুলোতে কি হবে বলে মনে করছেন? কারণ সেগুলো জিতবো, যেগুলো হেরেছিলাম সেগুলো জিতবো। অগ্নিমিত্র পোল বলছে বহিরাগত শত্রুঘ্ন সিনহাকে। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মানুষ, বেনারসে দাঁড়ায়, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন উনি কি বেনারসে বহিরাগত। वहीं विधान उपाध्याय ने दबे जुबान में पार्षदों को चेतावनी भी दी कि मात्र 1 माह पहले जो पार्षद जीते हैं और काफी अधिक वोट से जीते हैं, उनको इस प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा। কবে কি হয়েছে জানি না, আগামী দিনে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতছে, এটা একদম নিশ্চিত। অগ্নিমিত্র পাল বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, তাই আসানসোলের মানুষ চাইবে আসানসোলের মেয়েকে, তাহলে তাই তিনিই জিতবেন বলে তিনি আশাবাদী। উনি আসানসোলের মেয়ে কী করে, কী প্রুফ আছে? প্রুফ তো কিছু নেই, উনি তো বিধানসভা ভোটের আগে এসেছিলেন। তো সেখানে নয়, বাংলার মেয়েকে চায়। মমতা ব্যানার্জি কোথায় আর কোথায় অগ্নিমিত্রা পাল, এখানে এটা কোনো হয় প্রচার হয় নাকি? আচ্ছা, দেখা গেল কাউন্সিলর বা যারাই বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে জিতে এসছেন, তাদেরকে কি বার্তা দিতে চাইছেন? কারণ এর আগে যে নির্বাচনগুলো গেছে, বিধানসভা হোক বা লোকসভা, দেখা গেছে বেশিরভাগ ওয়ার্ডেই তারা কিন্তু জয়লাভ করতে পারেনি, অনেক ভোটেই হেরে গেছে। ঠিক উল্টোটা হয়, তাদের জন্য কি কিছু বার্তা দিচ্ছেন আপনি? বার্তা একটা, সবাইকে নিয়ে সাথে নিয়ে, যেভাবে কর্পোরেশন ভোটে আমাদের জেতা হলো, যেভাবে আমরা গত বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছি, ঠিক সেভাবে সবাইকে সাথে নিয়ে একসাথে লড়াই করে আমরা নিজেদের জন্য যেভাবে জিতেছি, ঠিক তেমনিভাবে এই পার্লামেন্ট ইলেকশনে পার্টিকে আমাদের নিজেদের মতন করে পার্টিকে জেতাতে হবে।
যদি কাউন্সিলর ভালো ফল দিতে পারে না সেই ওয়ার্ড থেকে, তাহলে এটা এখন এগুলো আমাদের এখতিয়ার নয়, এখন বলারও জায়গা নয়। আমি চাই, আমি একদম ওপেন সবাইকে বলেছি, যেভাবে আমরা নিজেরা প্রার্থী হলে যেভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেটে সবাইকে হাত জোড় করে সবার পায়ে পড়ে যেমন আমরা জিতি, নিজেরা জিতি, ঠিক সেভাবে আমাদের এই নির্বাচনে আমাদের দিদিকে জেতাতেই হবে। आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में फिर से ट्रेड फेयर लौट आया है। 2 साल बाद कोलकाता की CCG मार्केटिंग एंड सर्विसेज नामक कंपनी और आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से पोलो ग्राउंड में इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह ट्रेड फेयर 19 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा। शनिवार को राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने इसका फीता काटकर उद्घाटन किया। ट्रेड फेयर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कानून मंत्री मलय घटक के अलावा ADDA के चेयरमैन और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल,
सचिव शंभुनाथ झा, सीसीजी मार्केटिंग एंड सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदन चैटर्जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरिंदम चैटर्जी समेत अन्य अतिथि मंच पर आसीन थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित विधिवत ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया। चैम्बर अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि 2 साल बाद ट्रेड फेयर हो रहा है। ट्रेड फेयर से व्यवसायियों को काफ़ी फायदा होता है। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर आज 2 साल आगे हुआ था। उसके बाद हम लोगों का 2 साल से ही प्रोग्राम चल रहा था, किंतु कोविड की वजह से नहीं कर पाए, सरकारी नियमों को देखते हुए और कोविड को देखते हुए। इस साल हम लोगों ने फिर तय किया कि कोविड के बाद ये कोविड जो ख़त्म हो गया है और अभी सभी को सभी चीज़ की ज़रूरत है, उसको देखते हुए हमने इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर का आयोजन किया है। और हम चाहते हैं कि अब कोविड को देखते हुए और कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों को हर चीज़ को आगे बढ़ाना है, सरकारी नियमों को मानते हुए। और लोगों के मन में एक जो उदासी इतने सालों से छाई हुई थी, उस उदासी न रहे और लोग व्यापार कर सकें, लोग काम कर सकें, लोगों का घर चल सके, परिवार चल सके, उसको देखते हुए इस वर्ष हम लोगों ने फिर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया। ट्रेड फेयर में क्या होता है, एक्चुअल में ट्रेड फेयर में जब एग्जीबिशन जो लगते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या न्यू आ रहा है और आने वाले समय में और किस चीज़ का उपयोग हो सकता है, आने वाली चीज़ में क्या चीज़ की चाहत है, यही इस ट्रेड फेयर के मार्फत में दिखाया जाता है, जिससे कि इससे व्यापार बढ़े। और हम लोगों को आशा है पूरी कि व्यापार इससे बढ़ेगा। वहीं ट्रेड फेयर के संयुक्त आयोजनकर्ता सीसीजी मार्केटिंग एंड सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव चंदन चैटर्जी ने कहा कि बिजनेस के लिहाज से कोलकाता के बाद आसनसोल पश्चिम बंगाल में दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर है। लास्ट टाइम एग्जीबिशन सक्सेस होने का बाद इस बार मैं बहुत खुशी का साथ आपको बता रहा हूँ। इस बार इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर हम लोग आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साथ जॉइंटली इस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर से भी इस बार उम्मीद है अच्छा एग्जीबिशन जाएगा और हम लोगों का कुछ पार्टिसिपेंट भी लास्ट टाइम से हम लोगों का बढ़ा है। 6 कंट्री से पार्टिसिपेशन है और 15 स्टेट का पार्टिसिपेशन है, जैसे बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, आपका मलेशिया है, दुबई है, थाईलैंड का है, ईरान का है, लेबानन का है और पश्चिम बंगाल छोड़ के भी 15 स्टेट से पार्टिसिपेशन आया है। 100 का ऊपर स्टॉल है। हम उम्मीद करते हैं जो लास्ट ईयर जो अच्छा रिस्पांस मिला था, आसनसोल का सभी नागरिक को हम रिक्वेस्ट करते हैं इस बार भी आप लोग आइए, मेला देखिए और इसको सक्सेस दीजिए। पहले बार रिस्पांस जो एग्जीबिटर पार्टिसिपेशन किया था उसका रिस्पांस, उसका फीडबैक जो मिला है, सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उसी टाइम सब बताया था कि नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आसनसोल कीजिएगा, अगर आसनसोल कीजिएगा तो हम लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। और हम भी ऐसा मानता है कि कलकत्ता का बाद अगर बंगाल में पोटेंशियलिटी वाइज अगर कोई सेकंड शहर है तो वो आसनसोल। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PSG TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।